Okay, a very good morning to everyone. Let us start our class. So, we were on this series data structure. What was data structure? Data structure was the way of storing and organizing the data. So that was the first thing that we have already seen, and data structure is of two types. That is also seen by us. The first one is series data structure, the another one is data frame data structure. If I talk about the details of series and data frame, if it is asked what is the difference between series and data frame, so you can see on this page, it is written over here, the difference between series and data frame data structure. Series data structure is one dimensional, data frame data structure is टू डायमेंशनल. होमोजेनियस मतलब क्या होता है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स का द डेटा टाइप विल रिमेन द सेम. But what about this? It is heterogeneous. Heterogeneous means there will be different elements. जैसे कि ये है मेरा डेटा फ्रेम, तो ये वाला एक एलिमेंट दूसरा है, ये वाला दूसरा एलिमेंट है, ये वाला तीसरा एलिमेंट है, ये वाला चौथा और ये वाला पांचवा. इफ दीज आर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, so this can be of string type, this can be of integer type, this can be of float type, this can consist dates, this can consist boolean values. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर each and every element can have different we can say data types. So this is the very important thing that we should know. There is one more concept for mutability that comes inside series and data frame data structure that we should know. तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो वैल्यूज़ होती हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो म्यूटेबल होती है. मतलब हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं. पर अगर हमारे पास एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है which consist of these 5 values, so you cannot add one more value to it, means the sixth value cannot be added. मतलब हम उसका साइज नहीं चेंज कर सकते. ठीक है, उसका साइज चेंज नहीं किया जा सकता, बट वैल्यूज चेंज की जा सकती है. और वहीं मैं अगर डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पर वैल्यूज भी चेंज की जा सकती हैं, वो तो सीरीज में भी की जा सकती हैं, बट यहाँ पर साइज नहीं बदला जा सकता. बट inside data frame data structure size can also be modified, which means we can add and drop. It is written over here that we can add and drop elements in an existing data frame object. तो किसी भी data frame object जो कि exist करता है उसमें से हम elements को add या remove भी कर सकते हैं data frame data structure में. But for now we are on our simple part which is series data structure. Series data structure की अगर मैं definition की बात करूँ, so the very first thing that you have to include in definition is this. It is one dimensional array of indexed data, है ना. indexed data मतलब each and every value will be having a index, और वो one dimensional array होगा. मतलब इस तरीके की बस सिंगल वैल्यूज का कलेक्शन होगा. एरे मतलब क्या होता है, तो एरे मीन्स वी कैन से कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, है ना. एक जैसी वैल्यूज के कलेक्शन को एरे बोलता है. तो ये वन डायमेंशनल एरे रहेगा, तो ये हमको पता होना चाहिए. इवन वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट सीरीज. तो सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग पी फंक्शन, पी डॉट सीरीज फंक्शन. तो इस तरीके से हम पी डॉट सीरीज फंक्शन बनाकर डेटा फ्रेम में सीरीज में डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ मूव अहेड. यहाँ पर हमने पाइथन सीक्वेंस कैसे ऐड करना है उसके बारे में बात कर ली थी. तो यहाँ पर हमने देखा था रेंज फंक्शन लगाकर या कोई लिस्ट वैल्यू को पास कर कर हाउ वी कैन पुट वैल्यूज इनसाइड द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दीज few examples which are given. This one was example number 1 which we have seen. Example number 2, as you have now not asked any queries, so I believe that you have already understood these 5 examples which are right now on your screen. 1 2 3 were first and second were on the previous screen, and these 3 on this screen. As you have not asked any questions, so I believe that you have understood these topics. Now starting with today's topics, now we will be seeing the other way of storing the data. ठीक है, एक तरीका तो हमने देख लिया कि कैसे हम सीक्वेंस में वैल्यूज डालकर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो एनडी एरे नाम का एक कंसेप्ट होता है, उसका यूज़ करके हम डेटा फ्रेम में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. अब एनडी एरे क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर जिसको बोलते हैं नमपाई. नमपाई में भी क्या होता है, हम नंबर्स से डील करते हैं.
तो ये numpy नाम का एक कंसेप्ट होता है, और numpy के अंदर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं एनडी एरे, एन डायमेंशनल एरे, ठीक है, मतलब एनी नंबर ऑफ वैल्यूज इट कैन कंसिस्ट, सो इट इज एन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो एन डी एरे होता है, अब चूंकि दैट वाज आवर डिलीटेड सिलेबस, सो वी डोंट नो मच अबाउट नमपाई, तो हमको नमपाई के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसीलिए सिर्फ इतना याद रखो अभी के लिए कि एन डी एरे का यूज़ करके, मतलब कि एन नंबर ऑफ डायमेंशंस की वैल्यू का यूज़ करके हम यहाँ पर एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये जो एन डी एरे होता है या जो नमपाई होता है, ठीक है, जो नमपाई होता है, अब नमपाई भी यूज़ करना होता है ना हमारे प्रोग्राम में, तो हमको ऊपर लिखना पड़ता है इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ऐसा हमको लिखना पड़ता है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, तब जाकर हम नमपाई के मेथड्स और फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये भी एक पाइथन की एक सेपरेट लाइब्रेरी है, बट इस लाइब्रेरी को हमारे सिलेबस से लास्ट ईयर हटा दिया था और वो इस साल भी नहीं है, बट ये छोटा सा पार्ट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एन डी एरे का इस्तेमाल करके हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो एन डी एरे होता है इसके अंदर कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, जैसे मैंने लिखा रेंज 1,3, so definitely it will print the value to be 1 0 1 and 2, being 3 the last value it won't be printed, ये प्रिंट होगी नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 2। Similarly the funda remains the same, and in numpy what happens, only a is added in the beginning। तो यहाँ पर रेंज फंक्शन को नाम दूसरा दे दिया गया है, यहाँ पर नेम रेंज फंक्शन को बोलते हैं ए रेंज फंक्शन, ठीक है। अब ए रेंज फंक्शन यहाँ पर अगर हम यूज़ करें रेंज की जगह ए रेंज, क्योंकि ये नमपाई का कंसेप्ट है, तो अब जब रेंज की जगह ए रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने यूज़ करके बताया ये वाली लाइन में 3,13, अगर सिंपली यहाँ पर लिखा होता 3,13, सो आउटपुट वुड हैव बीन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 13 being the last value it will not be printed, तो ये हमारा आउटपुट आता अगर 3,13 लिखा होता तो, ठीक है। बट अभी वहाँ पर 3,13 के बाद भी उन्होंने कॉमा लगाकर लिख दिया है 3.5। What does this 3.5 mean? This 3.5 is the step, means the first value will remain 3, the another value will be plus 3.5 in it, so the next value will be 6.5, third value will be another 3.5 in it, so it will be 10, and if we search for next value 10 plus 3.5, so it will be 13.5, so 13.5 is larger than 13, so it will not be counted, so the output will be this much, this 3 6.5 एंड 10। सो ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो 3.5 लास्ट में यहाँ पर इनपुट किया हुआ है, ये 3.5 इज अ स्टेप, means the first value will remain the value which is provided, the next value will be 3.5 in addition to the first value, and the next value will be 3.5 to the addition to the new value। तो इस तरीके से हम आउटपुट्स को जनरेट कर सकते हैं। अब ये कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, जैसे इसने आउटपुट जनरेट किया 3 6.5 और 10, अब ये जो वैल्यू आई 3 6.5 और 10, वी नीड टू इनपुट दैट वैल्यू इनटू द सीरीज। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, आप लोगों को आवाज आ रही है? देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, यहां वाले एग्जाम्पल को देखना, just look at this example. If I talk about this very first line, so as a range is the function of numpy, तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है np.arange। अब वैल्यू पास करी 3,13, 3.5, इसका मतलब ये हुआ आउटपुट क्या आने वाला है, हमारा आउटपुट आने वाला है 3 6.5 और 10, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, ये जो आउटपुट आना है 3 6.5 और 10, इसको कहां पर स्टोर कर लिया, NDA1 के अंदर। नाउ दिस वैल्यू हैज बीन ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड NDA1, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो NDA1 को प्रिंट कर लिया,
ताकि पता चल जाए कि इस एनडीए के अंदर वैल्यू क्या है। तो इन्होंने एनडीए वन को प्रिंट कर लिया। अभी तक इन्होंने सीरीज पे वर्क नहीं किया। इन्होंने पहले नमपाई का फंक्शन लगाया अरेंज, वैल्यू प्रिंट कर ली एनडीए वन की, एंड नाउ इन द थर्ड लाइन दे आर क्रिएटिंग द सीरीज। हाउ द सीरीज इज क्रिएटेड, टू पी डी डॉट सीरीज फंक्शन, हम जानते हैं। अब पी डी डॉट सीरीज फंक्शन में क्या वैल्यू पास करना है हमको, तो एन डी एरे पास करना है। और एन डी एरे हमारा कहाँ है, तो वो एन डी ए वन के अंदर है। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया एन डी ए वन, ये यहाँ पर, ठीक है। पी डी डॉट सीरीज फंक्शन और ब्रैकेट में एन डी ए वन, जो कि ऊपर हमने आउटपुट में लिया था। एंड अल्टीमेटली एट लास्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी clicking on print series 1. As soon as we will print series 1, तो output will get generated and output will be like this. एक मिनट ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, so output will be like this, ठीक है। तो ये आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एनडी एरेज का यूज करके भी हम पाइथन के सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल दे हैव प्रोवाइडेड अस, इन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पर देखना, इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 6 में, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 में पूछा गया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एनडी एरे दैट हैज 5 एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ 24 से 64। इन्होंने क्या बोला कि 24 से लेकर 64 के बीच में 5 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो 24 और 64 दो एलिमेंट्स तो हो गए। अगला एलिमेंट क्या हो सकता है, 34, 44 और 54। तो आ गए अब 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ गए हमारे पास। जब कभी हमें ऐसा बोल दिया जाए, एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि नमपाई है नहीं, तो जितने फंक्शंस नमपाई के हमारे सामने आ रहे हैं हम बस उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू दी 24 एंड 64। They are asking that between 24 and 64 you have to print 5 elements. अब 24 से 64 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, 25, 26, 27, 28 अप टिल 64, कितनी भी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम होता है लाइन स्पेस फंक्शन। ये नाम ध्यान रखना, एक्सटर्नल्स जब आते हैं तो वो स्पेशली ऐसे फंक्शंस पूछते हैं। लाइन स्पेस फंक्शन में क्या होता है, कल भी आईपी का प्रैक्टिकल था, तो उसमें यहाँ पर लाइन स्पेस फंक्शन और एनडी एरे के बारे में पूछा गया था। तो लाइन स्पेस फंक्शन होता क्या है, लाइन स्पेस फंक्शन विल डू व्हाट, वो किसी इक्वल नंबर ऑफ सेक्शंस में आपके जो वैल्यूज़ होते हैं, आपकी जो रेंज होती है, आपकी रेंज को डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। आपकी रेंज को डिवाइड करने का काम करती है। अब कैसे डिवाइड करेगी, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, तो चलो वो देखते हैं। जब कभी हम नमपाई के अंदर का ये जो फंक्शन है लाइन स्पेस, इसको यूज करते हैं, तो इसका यूज करने का तरीका है ये, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी तो कर दिया। अब यहाँ पर हम नमपाई भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी भी लिखना पड़ेगा, इन्होंने नहीं लिखा है। ये हमको लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, एंटर, उसके नीचे इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, एंटर, और फिर हम लिखेंगे ये वाला फंक्शन। फंक्शन समझो क्या है, np डॉट लाइन स्पेस फंक्शन, ये है क्या, कैसे यूज हुआ उसको समझो। अब लाइन स्पेस फंक्शन में इन्होंने यहां पर देखो वैल्यू प्रोवाइड कर दी 24 से 64। क्यों प्रोवाइड कर दी 24 से 64, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला था कि 24 से 64 के हमको 5 टुकड़े करना है। तो 5 टुकड़े कैसे होंगे, तो वो लाइन स्पेस फंक्शन से होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 24, लास्ट वैल्यू 64, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो कॉमा लगा के 5। बस जैसे ही हम कॉमा लगा के 5 यहाँ पर लिख देंगे, तो लाइन स्पेस फंक्शन में क्या होता है, लास्ट वैल्यू भी प्रिंट होती है। तो यहाँ पर 24, 64, 5 है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा, 24, 34, 44, 54, 64. So this will be the output. So this is how we can work on
लाइन स्पेस फंक्शन। एक और फंक्शन बताया हुआ है जिसका नाम है टाइल फंक्शन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है टाइल फंक्शन। टाइल क्या होता है, एक टाइल्स, दूसरी टाइल्स, तीसरी टाइल्स, एक के बाजू में एक अरेंज हो जाती है ना, उसको बोलते हैं टाइल्स। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोला है, एक आपके पास लिस्ट है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो लिस्ट है आपके पास एक, और लिस्ट में क्या वैल्यू है 3,5। इन्होंने क्या बोला, आपको इसको 2 बार टाइल करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस, मतलब आपको 2 टाइम्स इसको टाइल करना है। जब आपको 3,5 को 2 टाइम्स टाइल करना है तो उसके लिए आपको टाइल फंक्शन का यूज करना पड़ता है। हाउ दिस टाइल फंक्शन इज यूज्ड, तो देखो यहाँ पर बताया है। टाइल फंक्शन इज अगेन अ पार्ट ऑफ numpy, so they have written over here np dot tile function। टाइल फंक्शन के अंदर लिस्ट पास कर दी 3,5, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्ट वैल्यू पास की हुई है 3,5 और कॉमा लगा दिया 2, मतलब कितनी बार आपको टाइलिंग करनी है तो कॉमा लगा दिया 2, तो क्या होगा 3,5 की 2 बार टाइलिंग हो जाएगी। मतलब वैल्यूज़ क्या प्रिंट होने वाली है अब हमारे पास, तो वैल्यूज़ प्रिंट होने वाली है 3,5,3,5, ये एक बार टाइल हो गया, ये दूसरी बार टाइल हो गया, तो 2 बार टाइल्स हमने बना दी इसकी। तो इस तरीके से हम लगा सकते थे। अगर मैं लगा देता 3,5 और कॉमा करके 4 और इसके आगे ये टाइल फंक्शन लगा होता तो आउटपुट आता 3,5,3,5,3,5,3,5, 4 टाइल बनती फिर हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइल फंक्शन वर्क करता है। तो ये एनडी एरे के कुछ फंक्शंस थे जिनका यूज करके हम वीकेंड से हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पर सीरीज क्रिएट करने के लिए। आई होप ये 2 एग्जांपल्स क्लियर होंगे। मैं आप लोगों को इस एग्जांपल्स की पीडीएफ भी ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा ताकि आप वो एग्जांपल्स को अलग से पढ़ सको। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, 2 तरीके हो गए, एक तो हो गया सीक्वेंस में वैल्यू यूज कर ली हमने सीरीज के लिए, एक हमने एनडी एरे का यूज करके सीरीज क्रिएट करके देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द थर्ड टाइप जिसको बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। डिक्शनरी की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, सो डिक्शनरीज डेफिनेशन में एक टर्म आती है दैट डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड हमेशा लिखना पड़ता है। कल भी जब एक्सटर्नल ने डिक्शनरी की डेफिनेशन पूछी तो एवरीबडी इंक्लूडेड अनऑर्डर्ड वर्ड। सो व्हाट इज डिक्शनरी, सो डिक्शनरी इज द अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना। तो ये उसकी डेफिनेशन है। डिक्शनरी क्या है, तो डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सेट है की वैल्यू पेयर्स का। अब की वैल्यू पेयर्स का अनऑर्डर्ड सेट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनपुट दिया, ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने इनपुट दिया है, ये एक मेरी डिक्शनरी है ये वाली, जिसमें की है जैन, फेब और मार्च, वैल्यू है 31, 28 और 31, ठीक है। सो दिस इज अ की वैल्यू पेयर, मीन्स डेफिनेटली दिस इज अ डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी है तो हम बोलते हैं कि अनऑर्डर्ड सेट है। अनऑर्डर्ड सेट का मतलब है कि जब इसका आउटपुट जनरेट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि जनवरी 1 पे आए, फरवरी 2 पे आए और मार्च 3 पे आए। ये नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट है, ये वैल्यूज़ का अनऑर्डर्ड सेट है। तो देखो इसका आउटपुट जो आया प्रोग्राम का, वो आउटपुट कुछ ऐसा आया, है ना। देखो जनवरी पहले लिखा था आपने, बट जनवरी केम एट द सेकंड पोजीशन, जो सेकंड पे लिखा था वो फर्स्ट पे आया और जो थर्ड पे था वो थर्ड पे। मतलब रैंडम ऑर्डर में अनऑर्डर्ड तरीके से वैल्यूज अरेंज होती है, यहाँ पर फिक्स तरीका नहीं होता कि वैल्यूज किस ऑर्डर में अरेंज होगी। तो इसलिए डिक्शनरी को बोलते हैं दैट इट इज़ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो ये हमको यहाँ पर क्लियर हो गया कि डिक्शनरी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल अगेन हमको देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसको अब हम समझते हैं। पी डी डॉट सीरीज फंक्शन तो लगेगा। पी डी डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर जहाँ पर लिस्ट पास करी थी, सीक्वेंस पास किया था, एनडी एरे पास किया था, वहाँ पर इस बार हम डिक्शनरी पास कर देंगे। तो as soon as we will pass the dictionary inside this, so you can see that it has been stored inside obj5 and ultimately we are printing obj5. So when we are printing obj5, so we are getting the output to be as this: January 28,
February 28, January 31, March 31. So this is the output that has been generated. So this is how we can use dictionary also in creation of a series data structure. Again they have provided us with one example. तो ये रहा example. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके स्कूल में जो 12th क्लास के सेक्शंस हैं उनमें जितने जितने बच्चे हैं उनकी एक हर सेक्शन की सी आपको डिक्शनरी का यूज़ करके एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. जैसे कि ए सेक्शन में है 20 बच्चे, बी सेक्शन में है 30 बच्चे, सी सेक्शन में है 50 बच्चे, ये 30 है, और डी सेक्शन में है 40 बच्चे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी. तो मैं डिक्शनरी कैसे बनाऊंगा, ए इज़ 220, बी इज़ 230, सी इज़ 250, डी इज़ 240. वैल्यूज़ स्टोर कर दूंगा, और वैल्यूज़ स्टोर करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिक्शनरी को अगर मैंने D1 में स्टोर किया हुआ है तो मुझे प्रिंट D1 लिखकर इसको प्रिंट करना पड़ेगा. तो देखो इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. तो नीचे देखना यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया, इंपोर्ट कर दिया पांडाज एस पी डी, और उसके बाद ये वाली लाइन देखो एस टी यू इज इक्वल्स टू, और एक डिक्शनरी बना दी और सीरीज फंक्शन के अंदर उस डिक्शनरी को इनपुट कर दिया. तो क्या होगा, आप जैसे ही इस S8 को प्रिंट करोगे तो S8 के अंदर क्या है, तो S8 के अंदर पी डी डॉट सीरीज फंक्शन है और उसके अंदर एस टी यू की वैल्यू है और एस टी यू की वैल्यू ये है. तो अल्टीमेटली द आउटपुट दैट वी विल बी हैविंग जनरेटेड ऑन अवर स्क्रीन विल बी दिस. यहाँ पर तो इनने ए बी सी डी सेम ऑर्डर में जनरेट कर दिया. कभी कभी हो जाता है अनऑर्डर्ड पेयर ज़रूर है, कभी कभी रैंडमली भी ऑर्डर्ड में अरेंज हो जाती है चीज़ें, है ना. तो ये रैंडमली ऑर्डर में अरेंज हुई है, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये है अभी भी अनऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. तो ये यहाँ पर हम डिक्शनरी का यूज़ करके भी वैल्यूज़ को सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं. अगेन मूविंग टुवर्ड्स द, अरे यार सॉरी, जस्ट अ मिनट, आई हैव मूव्ड अहेड. PDF पे गलत जगह क्लिक हो गया. अरे बाप रे, बहुत आ गया हूँ. हाँ ठीक है. डिक्शनरी का यूज़ करके हमने क्रिएट करके देख लिया. नाउ द लास्ट टाइप, ये है हमारा लास्ट टाइप. लास्ट टाइप बोलता है कि आप लोग एक स्केलर वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू को भी यूज़ करके सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो. बट जब हम सिंगल वैल्यू यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक काम नया होता है जो हमको पता होना चाहिए. देखो मैं आपको एक बनाकर बताता हूँ. जैसे मैंने लिखा पी डी डॉट सी एस लिख रहा हूँ, बस पी डी डॉट पूरे लिख देता हूँ सीरीज फंक्शन. अब जब पी डी डॉट सीरीज फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दी 5. अगर मैं इस तरीके से पास करूँगा तो यहाँ पर मुझे आ जाएगी एरर, ये सीरीज क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है. अगर मुझे सीरीज फंक्शन क्रिएट करना है स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू का यूज़ करके, तो सिंगल वैल्यू का यूज़ करके जब हमको सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है तो यहाँ पर जब हम सीरीज की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इस पोजीशन पर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, विच इज मस्ट. तो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो सीरीज प्रिंट करेगा. ठीक है. अब इंडेक्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, तो चलो उसको समझते हैं. एक बात तो क्लियर हो गई, स्केलर वैल्यूज इनपुट करने के लिए सिर्फ वैल्यू डालने से काम नहीं होता. स्केलर वैल्यूज को इनपुट करने के लिए इंडेक्स आर्ग्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है. अब ये इंडेक्स आर्ग्यूमेंट, व्हाट डज इट मीन बाय इंडेक्स आर्ग्यूमेंट, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक सीरीज फंक्शन लगाया हुआ है. पहले वाले को देखना, ये वाला पी डी डॉट सीरीज फंक्शन, वैल्यू डाली 10. सिर्फ इतना लिखते हैं तो प्रोग्राम विल जनरेट एरर डेफिनेटली. तो इन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास किया. इंडेक्स आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, इंडेक्स इज इक्वल्स टू रेंज 0,1. जब इंडेक्स में रेंज पास करी 0,1 तो कितनी वैल्यूज प्रिंट होंगी, 0 से लेकर 1 तक. तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 0 ही होगा. 1 तो लास्ट वैल्यू है तो 1 तो प्रिंट होगी नहीं. तो यहाँ पर सिर्फ 0 प्रिंट होगा एज एन इंडेक्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर इंडेक्स 0 प्रिंट हुआ और वैल्यू प्रिंट हो गई 10. ये हुआ एक एग्जाम्पल. अगले एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. तो अगले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर पी डी डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, वैल्यू डाली 15, मतलब 15 प्रिंट करना है. बट
सिर्फ वैल्यू डालेंगे तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू प्रोवाइड द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट। तो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल्स टू रेंज 1,6,2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ 1,6 होता तो वैल्यू आती 1 2 3 4 5, है ना, 6 लास्ट वैल्यू है तो वो नहीं आती। अब पर क्या बोल दिया है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस रखना है तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक, ये स्किप हो जाएगा, दूसरी वैल्यू एक स्किप हो गई, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये स्किप हो जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा। सो आउटपुट विल बी 1 3 5, है ना, एक एक वैल्यू स्किप कर कर। तो ये हुआ इंडेक्स आपका। इंडेक्स आपका क्या हो गया 135, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स 135 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब इस 135 इंडेक्स में क्या वैल्यू डालनी है, तो आपने लिख रखा है यहाँ पर वैल्यू डालनी है 15, तो देखो तीनों में वैल्यू डाल दी उसने 15, 1 3 और 5 तीनों में वैल्यू डाल दी 15। सो दिस इज हाउ स्केलर वैल्यूज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इनसाइड द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल यहाँ पर देखो, pd डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, वैल्यू क्या डालना है आपको, येट टू स्टार्ट। अब वैल्यू डालना है येट टू स्टार्ट, बट यहाँ पर इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर है इंदौर, दिल्ली, शिमला, 3 इंडेक्स है इनके पास। अगर इनके पास इंडेक्स है इंदौर, दिल्ली, शिमला, तो डेफिनेटली इंडेक्स की वैल्यू आएगी ये। तो ये देखो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी इन्होंने, इंदौर, दिल्ली, शिमला। और वैल्यू क्या डालनी थी, तो येट टू स्टार्ट, तीनों की वैल्यू येट टू स्टार्ट यहाँ पर इनपुट हो गई है। सो दिस इज हाउ scalar values can also be inputted inside the series data structure. There are 2 examples which are given over here. तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप लोग एक बार देखना और एक बार समझना कि क्या ये 2 एग्जाम्पल्स हमको क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं ये पूरा का पूरा वीडियो जो अभी हमने ये जो क्लास पढ़ी है, ये क्लास का ये पूरा जूम मीटिंग का वीडियो मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। इफ़ देर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉन थ्रू द टुडेज क्लास, एनी हाउ इफ़ दे हैव मिस्ड अवर क्लास, तो वो उस वीडियो को देख लेंगे। और ये मटेरियल भी मैं भेज दूंगा पीडीएफ सेपरेटली, कि जो आज हमने पढ़ा उसकी पीडीएफ अलग से भेज दूंगा, और एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम्पल्स भी अलग से भेज दूंगा। ये जो 10 तक के एग्जाम्पल्स है ना, ये वाले टिल एग्जाम्पल नंबर 10, मतलब 1 2 3 4 5 तो हमने कल ही देख लिए थे। आज के लिए कौन कौन से हो गए, 6 7 8 9 एंड 10। दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू गो थ्रू टुडे एंड अंडरस्टैंड, और इनमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, so students, this is it for today's class. We are left with 4 minutes. I am sending you the PDF right now. तो आप लोग यहाँ ग्रुप लीव कर कर आप ग्रुप को चेक कर सकते हो अपने, वहाँ पर मैं बिल्कुल मीटिंग एंड करते से वहाँ पर PDF अपलोड कर दूँगा। ऑलराइट, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class. Thank you, sir.